Good afternoon, dear student. Today I am going to discuss about the next topic, which is what here? Stephen's law. According to Stephen's law, the total radiant energy emitted per second per unit surface area of a black body is proportional to the fourth power of the absolute temperature of the body. Actually, Stephen's law is given by Stephens, and according to this law, the total radiant energy emitted from a black body per unit area per second is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of that black body. Suppose if the absolute temperature of the black body is T, अगर किसी ब्लैक बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर T है, देन द रेडियंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ये जो E है ये क्या है? रेडियंट एनर्जी इमिटेड बाय दैट ब्लैक बॉडी per unit area per second, which is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of that black body. And when we remove the proportionality constant, then here we introduce a new constant, and that new constant is called Stephen's constant. So we can write E is equal to 1 Stephen's constant into T to the power 4. Here written, where this constant is Stephen's constant, and the unit of this Stephen's constant is, E is what here? Is the radiant energy per unit area per second. It means the unit of E is joule per meter square per second. So how can you find sigma? So this Stephen's constant is equal to E upon T to the power 4. So the unit of Stephen's constant is joule per meter square per second, and here T to the power 4 means here we will take K to the power minus 4. So this one is what here? This one is unit of Stephen's constant, and at place of joule per second we can write watt. So this one can be also written as watt per meter square K to the power minus 4, and its dimension is given by m T to the power minus 3 K to the power minus 4. So in this way we can define the Stephen's law, statement of the Stephen's law, as well as unit of the Stephen's constant and dimension of the Stephen's constant. Again, if a black body at absolute temperature T is surrounded by a black enclosure at absolute temperature T0 or T0, then the heat energy emitted per second per unit area of that black body is given by E is equal to Stephen's constant T to the power 4 minus T0 to the power 4. Remember this here, T is the absolute temperature of the black body and T0 is the temperature of that black enclosure. So in this way we can find out the total radiant energy emitted per unit area per second of that black body, which is enclosure or which is enclosed by another body of absolute temperature T0. And next topic, which one is very important, and that one is what here? Spectral distribution of black body radiation, and this one is also what here? Wien's law. Actually, when a black body is heated at the different temperature, जब किसी black body को अलग अलग temperature पे heat किया गया और उनसे निकलने वाली रेडियंट एनर्जी और उस एनर्जी का जो वेवलेंथ था उनके बीच में जो ग्राफ खींचा गया, उसी ग्राफ को कहा गया स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी को डिफरेंट टेम्परेचर पे हीट करने के बाद हर एक टेम्परेचर पे उस ब्लैक बॉडी से निकलने वाली एनर्जी और उसका वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कितना था उनके बीच में ग्राफ खींचा गया. और इस ग्राफ में देखा गया कि जैसे ये टेम्परेचर T1 पे खींचा गया ग्राफ था, ये टेम्परेचर T2 पे, ये टेम्परेचर T3 पे, तो शेप ऑफ द ग्राफ इज ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल द टेम्परेचर. हर टेम्परेचर के लिए शेप ऑफ द ग्राफ क्या था? सेम था. तो इन्हीं कर्व को नाम दिया गया स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. और ये स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ब्लैक बॉडी. वो इसके बारे में, उस ब्लैक बॉडी के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन देती थी.
तो पहला इंफॉर्मेशन क्या था कि एज वी मीन्स फॉलोइंग informations from this graph, and first one is what here, as the temperature of black body rises, जैसे जैसे हम ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते थे, then the area enclosed by the distribution curve goes on increasing, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की एरिया थी वो भी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और the area enclosed by the curve gives the total radiant energy emitted by the black body, और ये जो कर्व की एरिया है वो बताती थी टोटल रेडिएंट एनर्जी emitted by the black body at that temperature, और जब इस एरिया को कैलकुलेट किया गया हर एक टेम्परेचर के लिए तो दैट वाज कमिंग E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T to the power 4। इसका मतलब जो रेडिएंट एनर्जी इमिट हो रही थी किसी टेम्परेचर पे T पे, तो इस ग्राफ की जब एरिया निकाली गई तो उसकी एरिया भी किसके बराबर आ रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T to the power 4। इसका मतलब द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड इज डायरेक्टली पर यूनिट एरिया पर सेकंड ऑफ द ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T to the power 4। यही क्या वेरीफाई करता था, दिस वेरीफाई द स्टीफेंस लॉ। कहने का मतलब ये है कि जैसे इस टेम्परेचर T1 पे ये कर्व हुआ और इसकी ये एरिया इसके नीचे का जब कैलकुलेट किया गया तो उसकी रेडिएंट एनर्जी आ रही थी E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 to the power 4। इसकी एरिया निकाली गई इस टेम्परेचर के लिए तो ये T to the power 4। कहने का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नीचे जो एरिया थी वो भी क्या होने लगी, बढ़ती गई, और ये देखा गया कैलकुलेट करके कि दिस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T to the power 4, और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो एरिया थी वो बताती थी रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी। तो दिस वन इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन विच कम्स फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। सेकंड क्या मिला कि एट ए गिवन टेम्परेचर T, किसी टेम्परेचर T पर देखा गया कि पहले विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ लैम्डा फर्स्ट एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस, देन रीचेस ए मैक्सिमम and then decreases. This means for a given wavelength, for a given temperature at a particular wavelength lambda, और उसी लैम्डा को कह दिया गया लैम्डा m, द एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम। इसका मतलब ये जो दूसरा इंफॉर्मेशन मिला ये क्या बता रहा है कि हर एक टेम्परेचर के लिए, चाहे वो T1 के लिए हो या T2 के लिए हो या T3 के लिए हो, ग्राफ में दिख क्या रहा है कि जैसे जैसे वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन बढ़ी तो यहाँ पे एनर्जी इमिटेड बाय देयर ब्लैक बॉडी विल आल्सो इंक्रीजेस, और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, जैसे यहाँ पे इस वेवलेंथ के लिए यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया एनर्जी इमिटेड, तो इसी वेवलेंथ को, जिस वेवलेंथ पे ये एनर्जी का पीक मिल रहा है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी इमिट कर रहा है, इसी को हमने लैम्डा m मान लिया है। तो फॉर ईच टेम्परेचर द peak of this graph shows that the maximum energy or energy emitted by that radiation is maximum for a particular wavelength। मतलब किसी एक particular wavelength पे energy emitted by the black body is maximum for a given temperature। जैसे इस टेम्परेचर T1 पे यहाँ पे जो wavelength होगी उसके लिए ये एनर्जी मैक्सिमम रही होगी, इस T2 टेम्परेचर के लिए ये वेवलेंथ पे एनर्जी मैक्सिमम रही होगी, T3 टेम्परेचर के लिए इस वेवलेंथ पे ये एनर्जी क्या रही होगी, मैक्सिमम। कहने का मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ये बता रहा है कि किसी भी टेम्परेचर के लिए कोई एक ऐसा वेवलेंथ होगा जिस वेवलेंथ के लिए एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम। एंड थर्ड पॉइंट इज व्हाट हियर, थर्ड वन, और याद रखिएगा जिस वेवलेंथ पे एनर्जी इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी मैक्सिमम हो रही थी उसी को हमने लैम्डा m नाम दिए थे। लैम्डा m का मतलब कि एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम फॉर दैट वेवलेंथ, मीन्स फॉर दिस वेवलेंथ द एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम। और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी राइजेस, जैसे जैसे ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो इस ग्राफ में ये देखा गया कि द पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ साइड। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे हमने ग्राफ का टेम्परेचर या जैसे जैसे हमने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया तो हमको मिला
कि ये ग्राफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो पीक था, ये जो पीक है वो शॉर्टर वेवलेंथ साइड में क्या करने लगा, शिफ्ट किया। जैसे इस टेम्परेचर T1 पे पीक इस वेवलेंथ पे मिला, टेम्परेचर T2 पे पीक यहाँ आ गया, इसका मतलब इस टेम्परेचर T2 के लिए पीक पहले वाले से लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। थर्ड T3 के लिए पीक यहाँ मिला, इसका मतलब जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी वेवलेंथ क्या होने लगी, घटने लगी, मतलब लोअर वेवलेंथ साइड में जाने लगी। तो ये ग्राफ ये बताया, थर्ड पॉइंट ये बता रहा है कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी देन द पीक ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ साइड, कम वेवलेंथ की तरफ ये जा रहा था। और वीन्स ने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया, देन वीन्स एस्टैब्लिश द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन टी एंड वेवलेंथ लैम्डा एम। टी मतलब जिस टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी को हीट किया गया, और लैम्डा एम का मतलब जिस वेवलेंथ पे एनर्जी ऑफ रेडिएशन मैक्सिमम थी। तो इस लैम्डा एम और टी का जो प्रोडक्ट आ रहा था वो एक कांस्टेंट था, इसलिए लिखा गया लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी, जहाँ बी एक कांस्टेंट है। और इसी रिलेशन को कहा जाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। So dear student, today you go through this topic which I have discussed regarding the Stephen's law and spectral distribution of the black body radiation and Wien's law. Thank you.